Hello. Yes, you are welcome at Bajrang series, an online series for the memorization of social science topic for standard 8, 9 and 10 with your social science guru Tirmal sir, hashtag Abhyas. Yes, बच्चा लोग, welcome in the session number 11. Teacher, I know we have learned so many things, but before starting today's session, I would like to, in fact, Rasanam Institute and my class English medium would like to wish you all the mothers of this Mother Earth a very happy Mother's Day. I wish all your wishes may come true. So, let us start our today's session by taking this glamorous word called mother. And today, we'll also talk about this our own motherland India. Okay, we will talk about some of the things which are occurred on this planet Earth and especially on our motherland called India, beta. Okay, so before starting today's session number 11, let us have some brief idea regarding the last session, and that was session number 10, number 10. So what we had done in the last session, that was few topic we have came across in the last session. That was the jari work we had done, wooden art was there. Okay, apart from that, inlay work was there, akeek work was there, and lastly, okay, we had talked about the painting. Okay, in the Surat, jari work was very prominent, as I have mentioned already. Apart from that, in the wooden art, Sankheda was very important along with the Eider. In metal, we were using so many metals, and yes, that was our question of the session. कौन सा था बेटा? कौन सा था? Yes, कि कौन सा metal सबसे पहले इंसान ने use किया था? So yes, so many of you have given very correct answer, and thank you so much for answering the question. That will seriously give me the encourage कि like students are watching, students are getting the things what I am saying. So thank you बच्चा लोग for typing your answers. And yes, what was the answer? So the answer was copper, and you are correct that copper was used by first, okay, by the men of the ancient time, and hence our very first metal age was also known as copper age, beta. Okay? Okay, so that was correct. And yes, I would like to repeat that मैंने आपको last lecture में बताया था, I am going on demand, and yes, I got one demand from your side, and yes, beta, as per your demand, I'll be starting with the chapter number 1 of standard 9 in the very soon sessions after completion of this particular chapter. Okay beta log? Okay beta log? And yes, आपको अगर पर्सनली यहाँ पे आके पढ़ना है तो you are welcome at Rasayanam Institute Maninagar. You are welcome at my class English medium Goda sir. You will be getting my phone number to contact me below this video. So yes, please contact for inquiries. Clear? So yes, let us continue with that. Then metal के बाद हमने देखा था बेटा, कौन सा देखा था? Yes, we have talked about inlay works, that beautiful engraving on the our ornaments of golds and silver. Okay, apart from that बेटा अकीक वर्क की बात की थी, और लास्ट में सारे अकीक जो थे, one example we had talked, that was a carnelian red type of transparent stone, that was the अकीक. और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो लास्टली कहाँ पे जाती है? So this all stuff खंभात भेजा जाता है बेटा, ठीक है, और वहां पे उसको अलग अलग तरीके से मोल्ड किया जाता है. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस. सो नाउ उसके बाद हमने पेंटिंग देखा था. पेंटिंग वाज द मोस्ट एंशिएंट, मैंने आपको ये भी बताया था, हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है. और बेस्ट एग्जांपल के लिए कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था भाई? हम लोग गए थे अजंता और इलोरा में, वहाँ के वॉल पेंटिंग्स को भी मैंने आपको देखने के लिए बोला था. आई होप आपने देखा होगा. देयर आर सो ट्रमेंडस बच्चा लोग पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स टू बी मोर प्रिसाइज. और वो सारे जितने भी पेंटिंग्स किए गए हैं वो सारे के सारे ठीक है, ओरिजिनल कलर्स, प्लांट कलर्स में से बना के किए गए हैं. बोलो ठीक है? पता चला आपको? पता चला? ओके, ठीक है. सो दैट वाज इट अबाउट दी ऑल काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स व्हिच आर देयर इन योर सिलेबस. Today we shall start with one word
कॉल्ड फाइन आर्ट। हम आज फाइन आर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज फाइन आर्ट? मैंने आपको बताया था बेटा कि जो आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपकी पूरी बॉडी इस्तेमाल हो रही है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी आर गेटिंग यूज, तो उसी को हम फाइन आर्ट्स बोलते हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक कौन से एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं? तो फाइन आर्ट में आपको दिया गया है बेटा सबसे पहले लाइक म्यूजिक दिया गया है, उसके बाद डांस दिया गया है, उसके बाद ड्रामा दिया गया है, ये सारी चीजें दी गई हैं। नाउ ये जितनी भी चीजें फाइन आर्ट में दी गई हैं, दिस इज व्हाई दिस ऑल हैज बीन गिवन टू अस। सो द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। द बेसिक आंसर बिहाइंड दिस इज दिस गिव्स अस एंटरटेनमेंट विदाउट एनी डाउट। यस बच्चा लोग, ये हमको एंटरटेनमेंट तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या देते हैं? उसके अलावा दे गिव अस द मोरल वैल्यूज, दे टॉट अस आवर ओन ट्रेडिशन बेटा लोग, ठीक है, ओके। एंड हेंस all this stuff, all kind of fine arts are very very important to learn. Clear बेटा? Clear? आप जो कोई भी लोग, मुझे पता है so many of you have inculcate yourself into the सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा। आप में से बहुत सारे बच्चे इस सभी फील्ड में होंगे, तो आपको पता होगा कि एक डांस स्टेप सीखने के लिए कितनी मेहनत लगती है, एक म्यूजिक का ट्यून सीखने में कितनी मेहनत लगती है, वो सिंगिंग के एक रिदम आने में कितनी मेहनत लगती है, एक ड्रामा, एक एक्टिंग करने के लिए कितनी मेहनत। यू ऑल नो दैट। आप जितने भी बच्चे और ये जो कोई भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उन सबको पता होगा कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको कंसंट्रेशन बिल्ड करना सिखाती है, वो आपको मेहनत करना सिखाती है, वो आपको खुद पे ट्रस्ट करना सिखाती है। एंड हेंस दिस फाइन आर्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी लाइफ पर्सपेक्टिव बेटा, ठीक है। और उसी जितने भी फाइन आर्ट्स है, उसी के में से 2-3 फाइन आर्ट्स हम इस सिलेबस में कवर करने वाले हैं। टुडे आई शैल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द सेशन, एंड दैट इज दी म्यूजिक। यस बेटा, आज हम म्यूजिक के बारे में बात करने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट? यस यस यस, हम म्यूजिक के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो यू ऑल पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। यस, सबका टेस्ट जो है वो म्यूजिक के अंदर अलग अलग होता है, पर यस म्यूजिक इज वेरी वेरी यूनिक इन इंडिविजुअल वे एज वेल। अगर आप इंडिया के म्यूजिक की बात करें, सो द इंडियन म्यूजिक is other, in fact unique than any other music of entire world, just because of its tune, rhythm and harmony. ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। Due to the tune, rhythm and harmony of the Indian music is different than any other music in entire world beta. And one of the book called Samaveda is considered as the holistic book of the music, and that forms our word of the session, and that is Samaved. ठीक है बेटा, Samaved is our word of the session because it is sometime also known as Gangotri of music बेटा। क्या बोला जाता है उसको? गंगोत्री ऑफ म्यूजिक बोला जाता है। बोलो, पता चला? ओके बेटा लोग, ठीक है। बिकॉज the rituals and the things which are given into the Samveda is the real sense of music बेटा, ठीक है। वो और ऋग वेदा विच आर फर्स्ट वेदा विच इज नोन एज, और द लार्जेस्ट वेदा विच इज नोन एज ऋग वेदा, उसको अंदर दिए गए जो श्लोक हैं उसको भी कैसे गाया जाता है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन दी सामवेद। क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर है बेटा? ओके। उसके बाद द इंडियन म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ म्यूजिक। उसमें से पहला आता है क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा आता है फोक म्यूजिक बेटा। क्लासिकल म्यूजिक जो कभी भी चेंज नहीं होता, इट इज प्योरली क्लासिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल एक्सेंट इन इंडिया, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक। ओके बेटा, ठीक है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए। उसके अलावा फोक म्यूजिक जो है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक इज क्लासिकल म्यूजिक कभी भी चेंज नहीं होता, whereas folk music will be changed by time to time, by people to people, by place to place, वो change होता है, and just because of it is known as folk music. Apart from that, there are 5 ragas, there are so many ragas, but 5 major ragas are there. श्री दीपक मेघ, हिंडोल अने भैरवी। कौन से? श्री दीपक मेघ, हिंडोल भैरवी। श्री दीपक मेघ, हिंडोल भैरवी। याद रहेगा आपको? ओके बेटा।
और ऐसा माना जाता है कि ये जो 5 राग है श्री दीपक मेघ हिंडोल अने भैरवी, ये जो शिव का जो पंचमुख है, जो रुद्राक्ष बोलते हैं उसको, उसके अंदर से ये 5 रागा निकले हैं, ऐसा बोला जाता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 7 वोवेल्स इन द म्यूजिक एंड व्हाट आर दोस? दे आर सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, ये जो 7 रागास है, सॉरी ये जो 7 वोवेल्स हैं, ये हम और इन सिंपल 7 सुर बोलते हैं इसको। ठीक है, वो संगीत के अंदर, म्यूजिक के अंदर आपको दिए जाते हैं। आई एम बैक आफ्टर दैट जगलिंग प्रोसेस। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट दो 7 सुर। ठीक है, उसके अंदर म्यूजिक के अंदर बेटा कितने? तो 7 सुर होते हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है? Okay, so that was a simple introduction regarding the Indian music. Now we shall talk about कि ये जो म्यूजिक है वो इंडिया के अंदर कैसे बॉर्न हुआ बेटा। ठीक है, तो आफ्टर the word, let us talk about the 3 kind of major books which are there into the Indian music. And what are those 3 major books? संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात और संगीत मकरंद, ऐसे 3 बुक्स आपको दिए गए हैं। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट, संगीत मकरंद। That is written by Narad somewhat in 1900 BC, okay? And उसके अंदर 19 types of वीणा, जो वीणा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके 19 types and 101 rhythm दिए गए हैं, that is the tone of singing। ठीक है, वो दिए गए हैं। क्लियर है बेटा? सेकंड इज संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर इज रिटन बाय पंडित सारंगदेव। ही वॉज लिविंग इन दौलताबाद। कहां पे रहते थे बेटा? दौलताबाद के अंदर रहते थे। एंड दौलताबाद इज समवॉट इन बिटवीन समवॉट द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया, एंड दैट इज द महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर वो रहते थे। हेंस ही वाज हैविंग द नॉर्दर्न एंड द सदर्न टाइप ऑफ सेंस ऑफ म्यूजिक। और इसके लिए उसमें कर्नाटकी और हिंदुस्तानी दोनों म्यूजिक का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। किसके अंदर बेटा? तो यस, इनटू दी संगीत रत्नाकर के अंदर, बाय वन ऑफ द पर्सन कॉल्ड पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। यस, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो थे उनके मुताबिक, ठीक है, ये जो संगीत रत्नाकर है इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक टू लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। उनके रिगार्डिंग तो ये जो संगीत रत्नाकर है वो बहुत अच्छी चीज है, जस्ट टू लर्न दी ऑल टाइप ऑफ और ऑल द पार्ट और ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। ओके बेटा? ओके, चलो उसके बाद आता है नंबर 3 एंड दैट इज दी संगीत पारिजात। And yes, one more thing which I forgot to tell you, that the Sangeet Ratnakar was written somewhere in 13th century. Okay, then the third one, Sangeet Parijat, written by Pandit Ahobal, okay, in somewhat 1665. Clear बेटा? और उसके अंदर एक चीज दी गई है, that all the rag has their own individuality, and yes, it is absolutely correct. हर एक राग को गाने का हर एक अलग रीत होता है बेटा, पैटर्न होता है बेटा। ठीक है? yes, I am talking about that. तो ये सारी चीजें और वेरियस टाइप्स ऑफ टोन्स एंड रिदम्स जो होते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर दी गई है बेटा? किसके अंदर दी गई? तो ये सारी चीजें आपको दी गई है यस 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 संगीत पारिजात के अंदर। उसके अलावा अगर मैं इंडियन म्यूजिक के थोड़ा हटकर बात करूं, थोड़ा हटके बात करूं, तो उसके अंदर क्या है? तो लेट अस टॉक अबाउट आमिर खुसरो। यस, ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, आमिर खुसरो। और जो आमिर खुसरो है, he was there in India at the time of Alauddin Khilji. Alauddin Khilji was the last Sultanate king of India. ठीक है? तो उसके अंदर उनके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, आमिर खुसरो was there and he was considered as a तूतीय हिंद, like हिंद नो पोपट, ऐसा उनको कहा जाता था, the parrot of India, right? Okay बेटा? Apart from that, the Bhakti movement was started in India because yes, the music also contained the bhakti, the devotee towards the God. Okay, so first time the Bhakti movement started by the Chaitanya Mahaprabhu, and later on, and later on it was joined by the various disciples, somewhat Vitthal Das and Krishna Das, and these two were the disciples of Swami Haridas, are Vitthal Das
and Krishnadas, and these two were the devotees who took a part in the Bhakti movement, are the devotees of Lord Krishna बेटा. ठीक है, ये दोनों लोग लॉर्ड कृष्णा के devotee थे which took part into the Bhakti movement. Apart from that, Tansen was there, then गुजराती बेलड़ी अथवा तो जने मतलब दे आर नोन एज गुजराती बेलड़ी और सिंपल गुजराती duet, and those were the Tana and Riri. Apart from that, the various people are there who took part into the music, and they took the music to the greatest accent. Okay beta log, so that is it about the music. But yes, this is just the end of the topic, but yes, we are still left with one more thing, and that is the question of the session. तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द सेशन है वो ये थोड़ा वेदा के ऊपर से ही मैं आपको दे रहा हूं, विच इज वेरी वेरी इजी. सोच लो बेटा क्या है. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर योर क्वेश्चन, दैट इज हाउ मैनी Vedas are there in India, or how many Vedas are there into the world. ठीक है, and what are they, वो कौन से हैं. ये दोनों चीजें आपको मुझे बतानी है इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि कितने वेदास हैं और कौन कौन से हैं. वो चीजें आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखानी है. बोलो ठीक है. कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है, आप वहां पे आपका आंसर दे सकते हो. टिल दैट stay home, stay safe, and yes, please be happy. Till that, goodbye.